Hello dear students, I am Ashish Rai and today we are going to start the class 11 chapter 1. Okay. Physical world. First, science and its origin. Science is a systematic understanding of natural phenomenon. Means science का मतलब है एक systematic understanding, systematic knowledge about the natural phenomenon. Next, the science is derived from the Latin word scientia and which has the meaning to know. Science ये जो word is taken from the Latin word scientia and it has the English meaning to know. Next, scientific method. What is the scientific method? Means how the law coming in our book. What is the main procedure to become a theory as law? First thing, systematic observation. Firstly, we have to do the systematic observation about the natural phenomenon. Second, controlled experiment. Then we have to do the controlled experiment on our observation. Then qualitative and quantitative reasoning. Then we have to calculate something. We have to try to understand the quantitative and qualitative reasoning. Then mathematical modeling. Then we have to frame a formula, frame a mathematical tool. Then prediction and verification. Then if it is necessary, then we have to something predict, means something try to discover new and we will verify that property. And after that is speculation and the prediction. Then with the use of this theory we can apply on the other and we will also experiment about that and then our theory will be finalized. Next point is science does not have any final theory. The improved observation, accurate tool keep improving the knowledge and the perspective. मतलब साइंस में ऐसा नहीं है कि ये फाइनल हो गया इसके बाद कुछ भी नहीं आ सकता है अगर हम उस ऑब्जर्वेशन, उस एक्सपेरिमेंट को अगर हम किसी और इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से करें जो ज़्यादा एक्यूरेट हो तो उसके थ्योरी को हम लोग और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्यूरेट कर सकते हैं. For example, Johannes Kepler used the Tycho Brahe research on planetary motion to improve the Nicolaus Copernicus theory. Next, quantum mechanics was developed to deal with the atomic and the nuclear phenomenon. Work of the Ernest Rutherford on the nuclear model of atom become the basis of the quantum theory given by the Niels Bohr. Antiparticle theory of the Paul Dirac led to the discovery of the anti-electron, means positron, by the Carl Ederson. Okay, this is about the quantum mechanics. Now, natural science. What is a natural science? Natural science is characterized into three parts: physics, chemistry and biology. We have to discuss the physics, so I am focusing on the physics. Physics is a study of the basic law of nature and their the manifestation in the different natural phenomenon. मतलब फिजिक्स के बारे में, मतलब नेचर में होने वाले जो भी फिनोमिनन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स में, उसके लॉज को समझते हैं कि उस किस तरीके से काम कर रहा है. द वर्ड फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिजिक मीनिंग द नेचर. जो फिजिक्स का जो वर्ड लिया गया है वो ग्रीक वर्ड फिजिक्स से लिया गया है और इसकी मीनिंग होती है नेचर, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ द नेचर. फिजिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टडी ऑफ द नेचर. Two principal types of the approaches in physics are first unification and then reduction. दो तरह के अप्रोच करते हैं हम लोग फिजिक्स में. पहला है यूनिफैक्शन और दूसरा है आपका रिडक्शन. In the unification, this approach consider all the world's phenomenon and the collection of the universal law, different domain and the condition. Example, law of gravitational applies to the both onto a falling apple from the tree as well as motion of the planets around the sun.
देखो, यूनिफैक्शन थ्योरी में हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसे लॉज को इंट्रोड्यूस करने का जो कि सारी चीज़ों को गवर्न करता हो। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो एक छोटे पार्ट की, मतलब एप्पल और अर्थ के बीच के भी ग्रेविटेशन को हम उसी लॉ से बता सकते हैं जिस लॉ से हम प्लैनेट्स के बीच के ग्रेविटेशन को समझाते हैं। ठीक है, इनके लिए कुछ अलग अलग लॉ नहीं है, ये दोनों एक ही लॉ से हम लोग उसको बता सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज गवर्न ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज जो हैं उनके थ्रू हम किसी भी टाइप के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिनन है तो उसको हम लोग समझा सकते हैं। इसको बोलते हैं यूनिफैक्शन, मतलब एक लॉ से ढेर सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देना। रिडक्शन, दिस अप्रोच इज टू डिराइव प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड द इंटरेक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। रिडक्शन प्रोसेस में हमने एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की प्रॉपर्टीज को बताने के लिए उनके जो पार्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के हेल्प से उनको हम लोग समझाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, टेम्परेचर स्टडीड अंडर द थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो रिलेटेड टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन ए सिस्टम। किसी बॉडी की अगर हम लोग थर्मल एनर्जी की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, तो वो किससे बना हुआ है? वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो हम लोग मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही उस बॉडी की थर्मल एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रिडक्शन। नाउ, इम्पैक्ट एंड यूजेस ऑफ फिजिक्स। फर्स्ट, इट कैन बी एक्सप्लेन ए फिनोमिनन हैपनिंग ओवर द लार्ज मैग्नीट्यूड विद द सिंपल थ्योरी। मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, एक बड़ी फिनोमिनन को भी हम लोग एक सिंपल थ्योरी के आधार पे बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ द प्लैनेट, दिस इज अ वेरी बिग फिनोमिनन बट वी कैन simply explain with the help of the Newton's law of gravitation. Second, experiments and the observation are used to develop the new theory for unidentified phenomenon and improve the old theory for existing phenomenon. एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग न्यू फिनोमिनन को सर्च कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, कुछ नया डिस्कवर कर सकते हैं, या फिर जो पुरानी फिनोमिनन है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज पॉसिबल इन द साइंस। देन, डेवलपमेंट ऑफ द फिजिक्स यूजिंग द लॉ ऑफ फिजिक्स, डेवलपमेंट ऑफ डिवाइसेस यूजिंग द लॉ ऑफ फिजिक्स। लॉ ऑफ फिजिक्स का यूज करके हम लोग नए नए डिवाइस को डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, योर मोबाइल फोन, कंप्यूटर, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द फिजिक्स लॉ। नाउ, स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वास्ट एज इट कवर द क्वांटिटीज विथ लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 to the power 40 मीटर और मोर एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज ऑफ यूनिवर्स, एंड एज लो 10 to the minus 14 मीटर और लेस स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटसेट्रा। मतलब जो फिजिक्स है वो हम इतने बड़े लेंथ से लेकर के इतनी छोटी लेंथ तक के बीच की स्टडी करते हैं। ये बहुत बड़ी लेंथ है और ये बहुत छोटी लेंथ है। साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, उसके बारे में बात कर रहा है। सिमिलरली, द रेंज ऑफ टाइम इज स्केल goes from 10 to the minus 22 second to 10 to the power 18 second. The mass of electron 10 to the minus 30 kg to the 10 to the power 50 kg. This range is very, very high. Physics is the broadly divided into the two types of based on its scope. First, the classical physics and the modern physics. Classical physics deals with the microscopic phenomenon, while the modern physics is deal with the microscopic phenomenon. फिजिक्स को उनके स्कोप के आधार पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मैक्रोस्कोपिक फिनोमिनन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एंड द मॉडर्न फिजिक्स में हम मैक्रो मतलब बड़ा होता है और माइक्रो मतलब छोटा होता है। तो माइक्रोस्कोपिक फिनोमिनन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं किसमें? मॉडर्न फिजिक्स में। नाउ लेट्स लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द macroscopic domain. Macroscopic domain includes the phenomenon at the large scale like laboratory, terrestrial and the astronomical. It includes the following subjects like mechanics. Mechanics is a part of the macroscopic domain which we will discuss in the later chapters. Like it is based on the Newton's law on motion
and the laws of gravitation. It is concerned with the motion, equilibrium of particles, rigid and the deformable bodies, general system of particle. Example, propulsion of rocket by ejecting gases, water and sound wave, equilibrium of bent rod under a load. मतलब मैकेनिक्स में हम लोग ऐसे न्यूटन्स के लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, रेस्ट मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे. कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिया हुआ है, जैसे हाउ द रॉकेट इज इजेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ द गैसेस एंड द वाटर एंड द साउंड वेव, equilibrium of the bent rod under the load. This all is called the mechanics. Electrodynamics, it deals with the electric and magnetic phenomenon. Electrodynamics is also a branch of physics, you can say, a branch of physics in which we are discussing about the electric and magnetic phenomenon. In the class 12th, from the starting, I think 90% of your syllabus is based on the electric and magnetic phenomenon. So there we will discuss the electrodynamics in a very broad way. Associated with the charged and the magnetic bodies means इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिनन को पढ़ेंगे जो कि चार्ज और मैग्नेटिक बॉडीज के थ्रू जनरेट होती है. ए मोशन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड. आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि वर्किंग ऑफ द डायनेमो, वर्किंग ऑफ द मोटर. In this, the current carrying coil is revolving in the magnetic field. The response of the circuit to an AC voltage. अगर AC वोल्टेज पे किस तरीके से कोई सर्किट रिस्पॉन्स करता है, किस तरीके से करंट फ्लो करता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे. The propagation of the radio waves in the ionosphere and किस तरीके से रेडियो वेव्स प्रोपोगेट होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, ये भी जो पार्ट होगा वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का होगा. थर्ड पार्ट इज ऑप्टिक्स. इट डील्स विद द फिनोमिनन इन्वॉल्विंग द लाइट. एग्जाम्पल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, कलर एक्सबिटेड बाय द थिन फिल्म. जो भी लाइट के थ्रू जो भी फिनोमिनन होगी, चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो प्रिज्म के थ्रू, या कलर एक्सबिटेड बाय द थिन फिल्म्स हो, ये सारी चीजें हम लोग लाइट की फिनोमिनन्स को हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स में, जिसमें आप लेंस के बारे में पढ़ोगे, मिरर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है. देन थर्मोडायनेमिक्स. इट डील्स विद द सिस्टम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम एंड चेंजेस in internal energy, temperature, entropy, etc. of system under the application of external force or heat. Example, in the thermodynamics we will discuss about the macroscopic equilibrium, like the changes in the internal energy of the temperature, entropy, etc. मतलब किसी बॉडी की इंटरनल एनर्जी किस तरीके से चेंज हो रही है, उसका टेम्परेचर क्या है, वो किस तरीके से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, कैसे हीट मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, इंट्रोपी क्या है उसकी, ठीक है. इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. एग्जाम्पल है कुछ एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, कुछ हीट इंजन की एफिशिएंसी, उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कितनी एफिशिएंसी होगी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. पॉइंट बी, डायरेक्शन ऑफ द फिजिकल एंड द केमिकल प्रोसेस. फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में भी जानेंगे. एक्चुअली इन द फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ड यू विल नो what we are going to study in the physics, why the physics is important to us and why we are going to study these chapters. okay? तो फर्स्ट चैप्टर में आपको बस यही जानना है कि हम लोग फिजिक्स क्यों पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, और उसमें क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे बीच में. फिर माइक्रोस्कोपिक डोमेन. माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स द फिनोमिनन ऑफ द माइन्यूस्क्यूल लाइक एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर. जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स में हम लोग बहुत छोटे स्केल्स पे, जैसे एटॉमिक स्केल पर, मॉलिक्यूलर स्केल पे, न्यूक्लियर स्केल की चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है. इट डील्स विद द इंट्रैक्शन ऑफ द प्रोब्स लाइक द प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड द अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में किस तरीके से इंट्रैक्शन हो रहा है, या फिर प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच में किस तरीके से इंट्रैक्शन हो रहा है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. Quantum theory has been developed to handle this phenomenon. Quantum theory, it is about the microscopic domain, जिसके हेल्प से हम लोग उसको स्टडी करते हैं.
factors responsible for the progress of the physics. First, quantitative analysis along the qualitative analysis, application of the universal law in different context, approximation approach, extracting and the focusing the essential feature of the phenomenon. ठीक है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द फिजिक्स. ये सब फैक्टर्स जो है वो फिजिक्स के प्रोसेस को मीन्स उसके प्रोग्रेस को एक तरीके से अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट, हाइपोथेसिस, एक्सियोम्स एंड मॉडल्स. हाइपोथेसिस मीन्स इज ए supposition without the assuming that it is true. It may not be proved but can be verified through the a series of experiment. हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि एक एजम्पशन, एक ऐसी चीज जो हमने सोच लिया और वो जरूरी नहीं है कि वो सच हो, ठीक है, लेकिन हम लोग उसे सच मानते हुए और उसको हम लोग जो है कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको वेरीफाई करेंगे. एक्सियोम इज ए सेल्फ एविडेंट ट्रूथ that is accepted without the controversies और क्वेश्चन. एक्सियोम का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है और इसको हम लोग कोई चैलेंज नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, लाइक 2 halves आर इक्वल. सो हम इसे कुछ चैलेंज नहीं कर सकते, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है. 2 halves आर इक्वल, 2 आधे चीजें हैं तो जाहिर सी बात है वो बराबर होंगे आपस में. मॉडल is a theory proposed to explain the observed phenomenon. मतलब कि जो भी फिनोमिनन हमने ऑब्जर्व किया उसको हम लोग एक थ्योरी के तौर पे एक्सप्लेन करेंगे और उसको बोलेंगे मॉडल. नेक्स्ट, assumption is the basis of the physics where the number of phenomena can be explained. These assumptions are made from the experiment, observation and the lot the statistical data. assumption ये भी फिजिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है. इसमें हम लोग कोई भी फिनोमिनन जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एजम्पशंस करते हैं, कुछ हम लोग क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, ठीक है, और ये क्राइटेरिया आपके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू डिसाइड होता है. टेक्नोलॉजीज एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ द फिजिक्स. मुझे लगता है कि आप टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी मीन्स फिजिक्स सिंपली. Steam engine was developed from the industrial revolution in the 18th century. This is technology and it is based on the physics. Wireless communication was developed. This is based on the physics. Neurons induce the fission of uranium done by the Hahn and the Meitner in the 1938 led to the formation of the nuclear power reactor, nuclear weapons. This is also the technology which is based on the physics. Now conversion of the solar, wind and the geothermal etc energy into the electricity means how we can convert the solar energy into the electric energy, wind energy into the electrical energy, geothermal energy into the electrical energy. This technology is also based on the physics. Okay, conversion of the solar into the electric energy is from the solar cell, and the wind energy we can use the dynamo, then we can convert the wind energy into the electric energy and etc. For the geothermal energy we will use the thermocouple device which is used to convert the thermal energy into the electric energy. Okay, so thank you very much.